academic journey. Now, without any further delay, I would like to invite Dr. D.K. Sharma sir, Director Pharmacy, Sanskriti University, to deliver the warm welcome address to Mr. Pradeep sir. I welcome you, sir. Thank you, madam. The stage As is we know yours, that sir. today we, Thank you, madam. As we know that today we have expert talk on medical coding. First of all, I would like to express my sincere thanks to Mr. Vikas Vasisht ji, who has accepted our request within short period. Thank you, Vikas ji. And then I also extend my sincere thanks to Mr. Pradeep Kumar ji and Ms. Udikta Chaudhary, who are the expert today. And I am also very thankful and I welcome all the students who have taken participate in this particular event. Without wasting the time, I request now Varsa Snehi to give the introduction of the speakers one by one, and let's hope that this particular event is going to be very wonderful and the students will come out with very good experience. Thank you so much. Thank you so much, sir. Much, sir, for your kind words and warm welcome. It is indeed an honor to welcome our first speaker of the day, Mr. Pradeep sir. He is the most awaited moment. He is medical coding expert and quality manager from Coders Hub Medical Coding Institute, which is a unit from Dakshta Foundation. Mr. Pradeep Kumar has successfully founded IIT incubated startup demonstrating entrepreneurial acumen, innovation leadership, and the ability to transform healthcare technology solution from concept to the market reality. Mr. Pradeep has a strong educational background as he is BTech in biotechnology from SRM University. Professor Mr. Pradeep Kumar sir is currently working as quality manager in medical coding industry, which is an MNC company. He has more than 13 years of MNC experience in multi-specialty coding, quality management, and startup leadership. I would extend my request to Mr. Pradeep sir to come to stage and enlighten our students with his kind words. Please, sir, I welcome you. Yeah, so first of all, thanks for inviting me. Welcome you all, Sanskriti University, Director Sir, and all the respected member and all my dear student. So मैम ने जैसे मेरे बारे में बताया, so I will directly, jump into medical coding journey. So hello guys, can you hear me? Am I audible to you? Hello everyone. Yes, sir. Yes, sir. You are Yes, sir, audible. you are clearly audible. ओके मैम, जस्ट आई वांट टू कंफर्म अभी करंटली हमें कितने स्टूडेंट लोग देख पा रहे हैं? Approximately, we have 80 students, sir. ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. And some approximately 100 are more joining in another room, sir. श्योर श्योर श्योर, ग्रेट. सो आई विल स्टार्ट विथ straight to the point about medical coding journey. So I have started my medical coding career in 2012 as a medical coder. Language you all. Please repeat, please pardon. या आई एम सेइंग दैट क्या मैं इस पूरे कन्वर्सेशन को हिंदी इंग्लिश मिक्स में कर सकता हूँ या फिर हिंदी में या इंग्लिश में, क्योंकि ऑडियंस को ये बातें समझ में Yes, आनी sir, चाहिए. it is completely your choice. ओके ओके श्योर, दैट्स It is completely your choice, sir. ग्रेट Please go on. ग्रेट ग्रेट. सो मेडिकल कोडिंग की जर्नी में मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताना चाहूँगा कि मेडिकल कोडिंग की इस राह में जो मैंने अपना कैरियर एक चूज़ किया था, आप ही लोगों की तरह मैंने भी जो है लाइफ साइंस को के बैकग्राउंड को चूज़ किया, एंड आफ्टर दैट करंटली मेरा 13 ईयर का एक्सपीरियंस है. सो मेडिकल कोडिंग की जर्नी में होता क्या है, दो चीज़ें हैं. एक कैरियर में एक स्टेबिलिटी है, एट द सेम टाइम फॉर सस्टेनेबिलिटी आल्सो. सो यू कैन सी विद दिस ग्राफ, इफ़ यू चूज़ दिस कैरियर, सो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं. सो ये जो एक डेटा है, एक जो सर्वे है
ये पिछले 15 साल का एक रिकॉर्ड है, जिसमें मैंने 10 साल की जर्नी को कुछ ज़्यादा ही एम्फेसाइज़ किया, बिकॉज 2015 से मेडिकल कोडिंग के बारे में लाइफ साइंस के एवरीवन सारे लोग जो है समझना शुरू कर दिए थे। प्रीवियसली साउथ इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। सो दैट मीन्स इफ़ यू स्टार्ट योर मेडिकल कोडिंग जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, so you will become a medical coder, and with the time your hierarchy will increase, like that senior medical coder, then subject matter expert, then quality analyst, then team lead, then manager, and your salary range will be start from 3.5 to 4 as a medical coder, then senior medical coder, then matter expert, then quality analyst, then team lead, देन मैनेजर। सो ये आपकी एक जर्नी होगी, और यहाँ पे ये 10 साल में ये एक लिमिटेड, ये एक एवरेज है। दैट मीन्स हाउ मच यू कैन अर्न इफ़ यू हैविंग दैट पोटेंशियल। आप इस 10 लाख की जर्नी को या फिर इस फिगर को आप 5 साल में भी इसे अचीव कर सकते हैं। रिसेंट जो ट्रेंड आया है आफ्टर लॉकडाउन, ये हमने देखा है कि हमारे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट या हमारे साथ के बहुत से ऐसे मेडिकल कोडर थे जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, उन्हें 10 लाख तक पहुंचने में 10 साल लगे, बट आज की डेट में ये 5 साल में ही आप अचीव कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल यू हैविंग, और आप अपनी इस जॉब को कितने अच्छे से निभा पा रहे हो। सो अब मैं आता हूँ मेडिकल कोडिंग के बारे में, कि मेडिकल कोडिंग में एक्चुअली होता क्या है। आपके सामने की स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन में यू कैन सी देयर इज़ मेनी मोर पेशेंट यहाँ पे जो कि ट्रीट हो रहे हैं। अब ये जितने भी पेशेंट जो ट्रीट हो रहे हैं, ये सारे मरीज हैं, ये सारे पेशेंट हैं, इन लोगों के हेल्थ का एक स्टेटस होगा। तो मेडिकल कोडिंग एक ऐसी भाषा है जहाँ पे बीमारी को, सर्जरी को, प्रोसीजर को, या हमारे आसपास के जीवन में जितनी भी बीमारियां या सर्जिकल प्रोसीजर, एनीथिंग जो आप देखते हो, सुनते हो, उन सब को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्यों करते हैं, सवाल ये उठता है। तो सवाल ये इसलिए उठता है क्योंकि विश्व की कुछ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके 3 किताबों को बनाया। एक थी हमारी आईसीडी, दूसरी है सीपीटी, तीसरी है एससीपीसीएस। सो आईसीडी को आप समझिए कि ये बीमारियों की डिक्शनरी है, सीपीटी को ऐसे समझिए कि ये जितने भी हमारे मेडिकल प्रोसीजर्स हैं उनकी डिक्शनरी है, और एससीपीसीएस जितनी भी सप्लाइज है। कहने का मतलब है अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ और उसको हार्ट अटैक आ गया, तो उसके हार्ट अटैक को हमें ट्रीट करने के लिए एक मेडिकल इंटरवेंशन से जाना पड़ेगा। अब वो हॉस्पिटलाइज हो करके हॉस्पिटल से बाहर निकल गया, तो डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सीपीटी। एंड ड्यूरिंग हिज ट्रीटमेंट प्रोसीजर, हॉस्पिटल में बेड, सप्लाई, इंजेक्शन एंड अदर थिंग्स, ये सारी चीज़ें एससीपीसीएस में आती है। तो मेडिकल कोडिंग में इन्हीं 3 किताबों को आपको पढ़ना पड़ता है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट व्हाट प्रॉब्लम यू हैव, हाउ दैट प्रॉब्लम वाज ट्रीटेड, एंड विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स। सो मेडिकल कोडिंग की जर्नी में आपको इन तीनों किताबों के बारे में ही पढ़ना होता है। सो आई वांट टू एम्फसाइज करंटली एज पर आईसीडी, दैट मीन्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस क्लिनिकल मॉडिफिकेशन, फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1903 में, एंड द लेटेस्ट एडिशन इज़ 10 है। आप सोचो कि इसकी हिस्ट्री कितनी बड़ी है। करंटली इस पूरे वर्ल्ड में 70,000 डिजीज़ हैं, करंटली नियर अराउंड 10,000 प्रोसीजर्स हैं, एंड नियर अराउंड 85,000 के आसपास हमारे एससीपीसीएस के कोड हैं। अब मेडिकल कोडिंग की जर्नी में हम क्या करते हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड एक लेडी हैं, इन्होंने अपने सर पे हाथ रखा हुआ है। माइट बी सी हैविंग सम हेल्थ इशू, क्या ये फीवर है? अगर डॉक्टर ने यहाँ पे फीवर को लिख दिया, तो मेडिकल कोडर का काम होता है कि चाहे ये लेडी चाइनीज़ हैं, या फिर ये लेडीज़ जो अफ्रीकन है या इंडियन है या वर्ल्ड के किसी भी कोने से है, सो दैट मीन्स उनका फीवर जो है वो हमारे बॉडी के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे कहाँ पर है और उसकी फिजियोलॉजी क्या है। सो वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज को बताती है जिसे हम आईसीडी बोलते हैं, और फीवर को अक्रॉस द ग्लोब वी कॉल्ड एज R50.9. At the same time, as I told you, one person who is having
चेस्ट पेन रिलेटेड। अब उसकी चेस्ट पेन से फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सो आपके स्क्रीन के सामने ये जो एक मॉनिटर दिख रहा है, यहाँ पे ये डॉक्टर कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं। सो दिस इंटरवेंशन इज़ व्हाट माइट बी सम पीपल नो, या फिर बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे जो भी इन्होंने अपने टास्क को परफॉर्म किया और स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है, सो इस इनके हार्ट के मॉनिटरिंग सिस्टम को हम जो है प्रोसीजर में कन्वर्ट कर देंगे एज ईसीजी को, और ये कोड होता है 93000। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोड का रेंज एक स्ट्रक्चर्ड है, यहाँ पे कोड का रेंज एक स्ट्रक्चर्ड है। And at the same time, if this patient is treating, so at the same time in the hospital's facility, or this patient is throughout the hospitalization or treatment of care, this person is going through, इस पेशेंट को ये भी सप्लाईज मिलती हैं। सो दीज ऑल, ये सारी चीज़ें SCPCS हमारी होती हैं। तो दैट मीन्स अब मेडिकल कोडिंग में हम करते क्या हैं। सी, थिंक अबाउट इट, आपके आसपास या आपके घर परिवार में से, या फिर रिसेंटली कोरोना के समय बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, बहुत से लोगों को हेल्थ का कंसर्न हुआ होगा। सो दीज पीपल व्हेन दे आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो आपने बहुत सी ऐसी खबरें सुनी होंगी जहाँ पे ये पता चला होगा कि इस पेशेंट के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इनके साथ ऐसी वैसी बातें हो गई। तो मेडिकल कोडिंग में होता क्या है कि जो डॉक्टर ने ट्रीट किया है, क्या एक्यूरेटली वो उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है, क्या उसकी क्लिनिकल प्रोफाइल से मैच कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेडिकल कोडिंग। यस सर, हेलो, एनीवन वांट टू से समथिंग? No, sir, please continue. या श्योर। सो अगर इनकरेक्ट कोडिंग होती है, दैट मीन्स सी, डॉक्टर्स आर बिजी फॉर डूइंग पेशेंट केयर, एंड माइट बी सम, कल को कोरोना जैसी और सिचुएशन आ जाए, या फिर हेल्थ केयर की और ढेर सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो हम ये कैसे एज अ पर्सन जो अपना पैसा स्पेंड कर रहा है, जिसको हेल्थ केयर की नीड है, उसे कैसे समझ में आएगा कि मेरे साथ जस्टिफिकेशन हुआ है या फिर मेरा सही ट्रीटमेंट हुआ है। तो मेडिकल कोडर का यही काम होता है कि जो फाइनल मेडिकल रिकॉर्ड है उसको एक करेक्ट कोड के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और हर एक कोड की डॉलर वैल्यू होती है, और अगर कोड सही हुआ तो वो एक क्लेम के रूप में अप्रूव हो जाता है। सो मेडिकल कोडर की जर्नी यहीं से शुरुआत होती है। सो मेडिकल कोडर एक तरीके से क्या होता है, जो कि हेल्थ के डेटा को अल्फ़ान्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट कर देता है, और फ्यूचर में इस हेल्थ के डेटा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस से, कि आने वाले समय में और किन बीमारियों का ट्रेंड हो रहा है, या फिर और नए नए इनोवेशन जो आप लोग फार्मा के सेक्टर में, न्यू ड्रग डिस्कवरीज या न्यू काइंड ऑफ इनोवेशन यू आर सीइंग इन द मेडिकल सेक्टर, एज अ बायोफार्मा हो सकता है या एनीथिंग हो सकता है। सो दैट मीन्स ICD सेइंग अबाउट व्हाट इज़ प्रॉब्लम, CPT सेइंग दैट डॉक्टर ने वहाँ पे क्या किया, एंड SCPCS, और उसके साथ साथ किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। सो दैट मीन्स यहाँ पर मेडिकल कोडिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि दैट मीन्स मेडिकल कोडिंग इज़ द लैंग्वेज बिहाइंड एवरी ट्रीटमेंट, एवरीथिंग। सो अगर यहाँ पे हम एक पेशेंट हैं जिनके मेडिकल बिल को अगर हम चेक करते हैं, सो अब ये जो मेडिकल कोडिंग की पूरी दुनिया है, इसकी एक साइकिल है। जैसे आपने जब क्लास अपने इंटरमीडिएट के बाद अपना जो फार्मा का कैरियर चूज़ किया, सो एंड करेंटली यू आर इन योर फाइनल ईयर ऑफ दिस जर्नी, तो आपकी एक जर्नी रही होगी। तो उसी तरीके से मेडिकल कोडिंग में एक जर्नी होती है, जहाँ पे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन से लेके उसके इंश्योरेंस चेक करने से लेकर के उसकी एलिजिबिलिटी को देखने तक, देन उसका क्लेम सबमिट हुआ कि नहीं हुआ है, वहाँ पे कोड एंटर हुआ कि नहीं। सो ये एक कंप्लीट जर्नी होती है, और हर एक जर्नी में नई जॉब क्रिएट होती है। सो US हेल्थ केयर में ये तो पिछले आप समझिए 100 साल से है, टेक्नोलॉजी के इनोवेशन से, और जब से हमारे देश में 4G 5G 3G का यहाँ पे 2008 के बाद से यहाँ पे काफ़ी जो है एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। यस, समवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस, प्लीज़ गो अहेड।
Please, your question, please. If not, then I will continue. Whoever is having the question, please ask. Yeah, and otherwise, within 5 minutes, I will conclude this thing, and I will take all of your questions, right? So you can see मेडिकल कोडिंग की एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कि जितने भी रिसेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहे हैं और हेल्थ केयर के डेटा को हम कितना ज़्यादा एक तरीके से हम जो है कंप्यूटराइज कर सकते हैं, यही एक जर्नी होती है. सो मेडिकल कोडिंग के. यस. Please do not interrupt in between anyone. Yes, Keep please. your mics off. Yeah, please. सो यू कैन सी दिस लेफ्ट साइड जो मेडिकल कोडिंग की जो एक कंप्लीट एक साइकिल है, एक मैं अगर फ्रेम में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो आप ये समझिए कि ये एक यूएस की साइकिल है जहां पे पेशेंट को डॉक्टर देख रहा है. उसके बाद यहाँ पे मेडिकल कोडिंग यूएस में पहले हुआ करती थी. अब मेडिकल कोडिंग जो यूएस में हुआ करती थी और फाइनल जब ये इंश्योरेंस को बिल भेजा जाता था तो यूएस में जॉब बहुत ही जो भी वर्क लेबर फोर्स है वहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ता था. सो इंडिया के टाइम जियोग्राफी के हिसाब से या फिर ग्लोबल आउटसोर्सिंग के हिसाब से इस काम को इंडिया में दे दिया गया. सो दैट मीन्स कि जो चीज़ पहले ये हुआ करती थी यूएस हेल्थ केयर में, जो यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड को यूएस के लोग पढ़ते थे क्योंकि इन्हें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता था. हमारे यहाँ टैलेंट पूल कुछ ज़्यादा ही अच्छा है और हम लोग ग्लोबल के लीडर हैं और इस चीज़ को हमने प्रूव किया, इसलिए ये शिफ्ट हो गया जैसे ही टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बनी. दिस इज़ कंप्लीट एक जो मेडिकल कोडिंग की साइकिल होती है, यहाँ पे यू कैन सी इन ईच एंड एवरी फेज देयर इज़ अ जॉब. ईच एंड एवरी फेज देयर इज़ अ जॉब. So think about from your perspective. If you are a medical coder, so from the medical coding book, you have to abstract medical code from the given references. If you are providing 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है तो इसका मतलब क्लेम अप्रूव हो जाएगा. तो यहाँ पे मेडिकल कोडर को एक सिटिंग जॉब मिलती है, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ होती है और यहाँ पर वो अपने इंटेलेक्ट को कहीं न कहीं यूज़ करके आज के समय में आई विल प्रेफर दिस इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग कैरियर वेयर इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द ग्रोथ then sustainable job and if you are in your current career prospect, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है. यू कैन चूज़. जैसे आई एम सेइंग दैट जब आपका कॉलेज का लास्ट ईयर होगा एंड यू विल चूज़ योर फ्यूचर, सो वहाँ पे आपको सस्टेनेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. Choice is yours. So among these you can choose. Yes, so I have completed my presentation. Go ahead with your questions. Anybody out there having any question, please raise your hand, either ask it directly. Anybody having any question? Okay, then sir, I'm having a question. Yeah, sure. What can be the eligibility to become a medical coder? Matlab, what kind of qualification our students need to become a medical coder? Okay, so my answer is that if you are a life science student, if you are a life science background student, okay, and sorry sir to interrupt, are all the students are from pharmacy background only? Sure, that's perfect. Yeah. So what kind of skill needed for medical coding? You should know about anatomy, physiology, that's it. And sir, what about technology skills? Yeah, technical skill is like that. Currently we are connecting with teams. So excel क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है. जैसे आप इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया चलाते हो तो वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी आपको सिखाता नहीं है, आप सीख जाते हैं. सॉफ्टवेयर का बस इस्तेमाल करना आना चाहिए. दैट्स इट. Means it's just a basic technical skills are needed.
Right. No more, Okay, sir. nothing at all. See, because see, as I told you, in medical coding, what we are doing, we are converting clinical parameter, we are converting alphanumeric code. So that means what? किसी को बीमारी है, फीवर है, तो फीवर कहाँ पे होता है, या मैं अगर बोलूँ कि किसी की कोलोनोस्कोपी हो गई तो कोलोनोस्कोपी क्या होती है. सो यू शुड नो अबाउट द मेडिकल टर्मिनोलॉजी and the Right. physiology, and after that you will read a medical record. एक standard set of rule है from all these books. So see, अब ये जब फार्मा के लिए, के स्टूडेंट के लिए क्यों सुटेबल है, बिकॉज यू नो फार्मास्यूटिकल, यू नो फार्माकोलॉजी, एंड इन योर फर्स्ट सेमेस्टर आई होप यू गॉन टू दिस थिंग, एंड एट द सेम टाइम आपको कॉलेज में तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं. अब यहाँ पे क्या है Right. कि एक तरीके से स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेंस की चीज़ें होती हैं जो कि रूल रेगुलेशन होती है. दैट इज थिंग. ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. So till now, do anyone else is having any question? Please ask. So no question. Should I wind up? Okay. Thank you very much, Mr. Pradeep Kumar sir, for sharing your vast experience and deep insights with us today. Your journey as a medical coding expert, quality manager, and startup founder is truly inspiring. And your talk has provided our students with valuable knowledge and motivation. We sincerely appreciate the time and effort you dedicated to guiding us. Thank you so much, sir. Ma'am, I know that I have taken such kind of seminar and presentation. So most of time जो student होते हैं ना, उनके जो questions होते हैं मैंने उसको prepare करा हुआ. So अभी यहाँ पे just if you can provide me 5 more minutes, so I can provide some more insight. So student के जो doubt है. Surely, sir. Go ahead. If the students are not asking you, go ahead and Yes, ask sure, the sure, sure, sure. हाँ. questions. Okay, so student, as you can. Please. Sir, one हाँ. student has sir. Sir, Yes. one student has question. हाँ. Sir, there is a हिंदी में network issue. Sir, Yeah. सर जो ICU 10 CM आपने बताया, जो 10 37 48 वो क्या है? फिर से एक बार अपने क्वेश्चन को रिपीट करेंगे आप. जो ICD 10 37 48 CM करके कुछ बताया आप. ओके ओके वो ओके क्या ओके है? ओके 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 ठीक है ठीक है. आई गॉट योर पॉइंट. सी आईसीडी दिस थिंग कि आईसीडी क्या होती है, राइट? दिस वन आईसीडी एक समझिए कि बीमारियों की डिक्शनरी है. दिस इज डिक्शनरी. ये एक बीमारियों की डिक्शनरी है, और उसको आप ऐसे देख सकते हो जैसे कि आप बताइए कोई बीमारी का नाम लीजिए, आप कोई भी इस दुनिया की कोई बीमारी बताइए, मैं अभी उसके कोड को सर्च करके आपके सामने बताता हूँ, और आपको रियल लाइफ में भी यही काम करना होता है. पूछिए. कैंसर सर. कैंसर, ठीक है ठीक है. अगर आप कैंसर को, तो फिर मैं कहूँगा कि कैंसर हमारी बॉडी के किस साइट पे है. प्राइमरी है, मैलिग्नेंट है, कैंसर इन साइटू है, बिनाइन है, अनसर्टेन ऑफ बिहेवियर है. तो आपने जो कैंसर बोला किस साइट का है? मैलिग्नेंट मान लो सर. किस एनाटॉमिकल लोकेशन का है, मतलब किस शरीर में कहाँ पे है? माउथ मान लो. ठीक है, हम माउथ ले लेते हैं. ओके, हम माउथ के कैंसर को ले लेते हैं. जस्ट ये साइड थोड़ा सा जो है नो शो. ओ ओ 1 सेकेंड. सी माउथ कैंसर का जो ये कोड होता है, ये होता है, ठीक है. ये जो वेबसाइट है, ठीक है, माइट बी ये स्लो क्यों है, आई डोंट नो व्हाई, बट आप समझिए कि जो बुक होती है वहाँ पर आपको ऐसे ही ये मिल जाएगा कोड जो है. सो इसी बुक को आपको जो है पढ़ना होता है, राइट. सो मेडिकल कोडिंग में हम जो है इसी तरीके से जो है कोड करते हैं. आई विल शो यू. सी जैसे आपने माउथ बोला, तो माउथ के किस रीजन पे है. सो दिस इज अबाउट दिस, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
इफ़ यू डोंट हैव क्वेश्चन देन मैं थोड़ा सा और आपको इंसाइट दे दूँ। इफ़ यू आर इन योर सेक्टर सो डेफिनेटली आपकी इंडस्ट्री 10% के हिसाब से ग्रो कर रही है, बट मेडिकल कोडिंग की इंडस्ट्री भी इससे कम नहीं है। एंट्री सैलरी आपकी जो ये एक स्टार्टिंग है, और जो आपकी जो फार्मा सेक्टर की जो एक सैलरी का जो एक स्टार्टिंग पैकेज है, और मिड कैरियर में आप जा रहे हो, तो यहाँ पे अगर मैं एक कंपैरिजन करूँ कि दोनों में से किस सेक्टर में आपको ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, सो मेडिकल कोडिंग आपको रिमोट जॉब प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि मेडिकल कोडिंग में 60 to 70% जो है रिमोट वर्क होता है। और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टास्क को हम परफॉर्म करते हैं जो कि ऑफिस जॉब होती है 9 to 5 की, और यहाँ पे जो है लोगों से कम इंटरेक्शन होता है, आप अपने टास्क को करते हो। इफ़ यू आर चूजिंग योर फार्मा जॉब सो दैट मीन्स यहाँ पे रिमोट वर्क का बहुत कम चांस होता है। यू माइट गो फॉर सेल्स या फिर लैब रोल, और यहाँ पे आपके जो आवर्स हैं दैट इज़ इरेगुलर काइंड ऑफ थिंग्स। And as I told you, for doing medical coding job or pharma job, you all are having the same qualification, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो रहे हो। तो अगर फ्यूचर की एक सस्टेनेबिलिटी को देखा जाए या फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए, सो आई विल कंपेयर बिटवीन मेडिकल कोडिंग वर्सेस फार्मा जॉब। सो यू विल फाइंड दैट मेडिकल कोडिंग इज़ हाईली सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब जो लंबे समय तक चलती रहे, क्योंकि आने वाले समय में जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, हेल्थ केयर में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, उसके हिसाब से मेडिकल कोडर की जॉब भी बढ़ेगी, और एआई ऑटोमेशन की हिसाब से काम हमारा और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यस, फार्मा इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही है, यहाँ पे आर&डी रिसर्च की चीज़ें बिल्कुल हो रही हैं, बट एंट्री लेवल के हिसाब से इफ़ यू आर चूजिंग मेडिकल कोडिंग अक्रॉस द ग्लोब, सो दैट मीन्स ये जितने भी टेकीज़ हैं या फिर रिटेल हॉस्पिटलिटी के जो लोग हैं, कॉल सेंटर के लोग हैं, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। अब मेडिकल कोडिंग की जॉब का अगर हम प्रोस्पेक्ट देखें तो आप देखो जॉब की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी 7 to 15% से एक बहुत बड़ी बात होती है, और आने वाले समय में ये बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी पर्सन के मेडिकल रिकॉर्ड में एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन कर दिया तो किसी पेशेंट का केयर ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। तो इसको कहीं न कहीं हमारी एआई या फिर टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। सो दैट द रीज़न ये एक फील्ड जो है आपके लिए बेटर होगा। अब ये जो मेडिकल कोडिंग की जॉब होती है वो एक रिसेशन प्रूफ है। कैसे? आप इसको ऐसे समझो, क्योंकि हेल्थ केयर की डिमांड तो हमेशा होगी, वर्ल्ड वार हो या फिर ग्लोबल क्राइसिस हो, मेडिकल इमरजेंसी हमेशा बढ़ती रहेंगी, पेशेंट का केयर हमेशा चाहिए ही चाहिए होगा। इकॉनमी की साइकिल कुछ भी हो, लॉकडाउन आया, अभी हमारा जो है एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई, फिर भी लोगों को हेल्थ इमरजेंसी तो चाहिए ही चाहिए ना, क्योंकि ये एक नया जैसे कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑयल प्राइसिंग एक बहुत बड़ा इकॉनमी का सेक्टर बना। देन जब हमने लॉकडाउन को देखा तो यहाँ पे एआई एंड 6G का इमरजेंस हुआ। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस का एक ऐसा सेक्टर है, क्योंकि बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, और डिजिटलाइजेशन या फिर ग्लोबल आउटसोर्सिंग की वजह से पूरी दुनिया की निगाह हमारे पे टिकी हुई है कि किस कंट्री में कहाँ पे कितने ज़्यादा एलिजिबल लोग हैं। अगर ये आपकी कहानी है, आप लाइफ साइंस के ग्रेजुएट हो और अपनी डिग्री के बाद आप कंफ्यूज हो कि मैं कैरियर कैसे बनाऊं, मेरे जॉब का फ्यूचर क्या होगा, तो फिर आप समझो कि एक तरीके से आप, अगर ये आपकी कहानी है कि चलो मैंने डिग्री ले ली, अब उसके बाद करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि हर कोई जो हेल्थ केयर के सेक्टर में है सबको चाहिए होता है एक्यूरेसी, सबको चाहिए होता है प्रिसीजन। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आज के समय में कंसल्टेशन फ़ीस बढ़ चुकी है, हॉस्पिटल में लोगों को जाने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, यंग एज में लोगों को बीमारियां हो रही हैं, एवरेज कंसर्न अबाउट दैट। सो एट द सेम टाइम इंडिया ने भी मेडिकल कोडिंग को अडॉप्ट कर लिया है। आई वॉज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। मैंने अपने जो मैम ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया, आई वॉज वर्किंग फॉर देम, बट इंडिया का भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
इतना स्ट्रांग नहीं है। यू कैन थिंक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आप लोगों के गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, बट हर किसी का डेटा वहाँ पे ईजिली अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी इतने सही से नहीं पहुँची हुई है कि हम जो सप्लाईज दे रहे हैं, जो हम वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो कहीं न कहीं आपको अगर सिक्योर कैरियर बनाना है, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करना है, और अपने कहीं न कहीं एक तरीके से जॉब में सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है, तो यू कैन चूज़ दिस कैरियर। क्योंकि सी व्हेन यू आर इन दिस करंट योर प्रोफेशन, सो मेरा आपसे सवाल है कि आपने जो अपना कैरियर चूज़ किया, किसी के प्रेशर में आके किया या ये आपका डिसीजन था? अगर ये आपने खुद चूज़ किया, या फिर आपके फैमिली द्वारा इन्फ्लुएंस था, या फिर आपके आसपास जो लोग कर रहे थे, ऐसे ही हम तो कैरियर का चुनाव करते हैं। तो अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं कि वो कौन सा प्राइमरी फैक्टर था जो आपके कैरियर के डिसीजन के लिए था? आप सिक्योरिटी देख रहे थे? Sir, यस, sorry to interrupt you. Sir, यस, यस, sir, I have one question. श्योर। If suppose students are interested to make their career in medical coding, how they can contact, or how exactly they should start their preparation? Suppose students are in final year, हाँ हाँ, so how will you guide डेफिनेटली। if they want to contact further information, if they need, how they can get from your side, sir? Sure. So first of all, if you can see this is if you can see my screen, or I hope all you can see this QR. Yes, sir, it is visible. So this is my WhatsApp contact number. So first of all, because I know that I am having limited time, you are also having a very precious time. So इस QR को आप जो अपने गूगल लेंस से ओपन करिए और आप डायरेक्ट जो है मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सो प्राइमरी कांटेक्ट ये रहा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू होती है। सो हमारा जो ये जब अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फिर हम यहाँ पे कैसे आपके जर्नी को लेकर के चलेंगे। सो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं, हमारे पास डिटेल्ड यहाँ पर कंप्लीट एक तरीके से कोर्स प्रिपेयर है, और इसमें आपको अपनी जो है किस तरीके से जो है जर्नी शुरू होगी उसको आप ऐसे देख सकते हैं। आपका एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड करिकुलम तैयार है। आपको इसमें कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं, आप हमसे चूज़ करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगी। इफ़ anyone want this thing in the detail, so definitely I will provide one-to-one session, and from this career perspective what you can get, and इस जर्नी में आपको क्या सर्टिफिकेशन और आपके करियर का पाथ क्या होगा, और आप यहाँ पे क्लास को कैसे शेड्यूल करोगे। सो यहाँ पर 70% मार्क्स चाहिए होते हैं इसके मेडिकल कोडर बनने के लिए। आपकी एक वीकली क्लास लगेगी, एंड एक्चुअली यू पीपल फ्रॉम द कॉलेज बैकग्राउंड, तो आप लोगों के लिए एक 6 मंथ का है। ये तो एक स्टैंडर्ड थिंग्स है, जहाँ पे 6 महीने का कोर्स चलेगा, जहाँ पे वीकेंड पे आपके साथ मैं कनेक्ट होऊंगा लाइक द वे 1-to-1 फिक्स सैटरडे संडे। नाउ चॉइस इज़ योर। सो 2 घंटे फिक्स है, और उसके अलावा सेम चीज़ आपको एप्लीकेशन पे, सेम चीज़ आपको वेब पोर्टल पे मिल जाएगी। इफ़ यू आर आप अगर अपने आप को कहीं बिजी पाते हो या आपका एग्ज़ाम सेशन चल रहा है, सो आपको वो सारी चीज़ें हम जो है प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या और करेंगे कैसे यहाँ पे मेडिकल कोडिंग में, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा ये बस बता देता हूँ हल्का सा, कि आप जो है शुरुआत में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे हेल्थ केयर का ओवरव्यू, देन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, देन आईसीडी इंट्रोडक्शन, कोड बुक के बारे में। सी दीज आर द थिंग्स विच यू विल लर्न इन दिस थिंग medical coding journey. So as I told you, there is 3 book. So in each and every book there is a, you know about curriculum and syllabus. So all the curriculum and syllabus is already prepared. So everything is मैं
ट्रेडिशनल टिपिकल मेथड को कभी भी अप्लाई नहीं करता हूँ। मैं हमेशा जो है यहाँ पर किस चीज़ को फॉलो करता हूँ, हमेशा दिस ऑल डॉक्यूमेंटेशन ये मेरे द्वारा बनाया गया हुआ है। सो आपका कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, आपका कोई भी समझिए कि एक बहुत ही आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए बोरिंग है, तो मैं उसको आसान बना दूंगा। तो हमारे नोट्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग कंटेंट आपको पॉडकास्ट मिलेगा, आपको यूट्यूब का एक्सेस मिलेगा, आपको एप्लीकेशन मिलेगा, आपको 1-to-1 मेंटर सपोर्ट मिलेगा। और अनटिल अनलेस यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस मेडिकल कोडिंग जर्नी, और आपकी जॉब के लगने से लेकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन से लेकर एंड टू एंड वी आर विथ यू। सो आई होप माई आंसर सेटिस्फाइड योर क्वेश्चन। जी सर, डू एनीवन एल्स इज हैविंग एनी क्वेश्चन? See, if you are, I know that you are in currently in that state of mind, so आप एक काम करो, कभी भी आपको लगता है आज कल परसों, एक महीने बाद, 2 साल बाद, कभी भी यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी, और मैं आपको, जब तक कि आप अपना खुद दिमाग इस्तेमाल ना करें, ये कैरियर मेरे लिए क्यों बेनिफिशरी है, आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी फर्दर डिटेल्स आपके साथ बिल्कुल शेयर कर दी जाएगी। एंड अभी तो हमने जो एक दूसरे से को कनेक्ट किया है, अगर मैं इतने कम समय में, आई होप दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस, अगर आप मुझे और समय देंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कैरियर के इस पाथ में मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सबको सिक्योरिटी स्टेबिलिटी चाहिए। Sir, sir, may I please request you? One more student have some questions, please. Please go ahead. Mr. Durgesh, he will ask some questions, please. Sure. A very warm good morning, sir, and respected members. So, one thing is currently vibrating inside my mind, and I would like to share with you. Well, it has been stated that this field, this medical coding, is going to be a booming industry in the context of honesty, also booming at with the same pace in the industry. So can't be replaced by the AI in the upcoming times, sir, since it is based on tech skills and knowledge. So it might be chances now, like right now we could see that this is going higher, but later it could have some negative consequences because of AI. Sure, great question. I would like to inform you, currently I am working on AI. Currently in my organization, currently I am working on AI project, same, ठीक है। ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि AI आपकी जॉब को ख़त्म नहीं करेगी, ठीक है, वो यहाँ पे नई जॉब को क्रिएट करेगी। ऐसा समझिए, आपके आसपास बॉस से या फिर आपके घर के आसपास बड़े बुजुर्गों से आप पूछना, एक पीसीओ का दौर था, एक इंटरनेट का दौर था, याद है, एक जीरोक्स का दौर था क्या, जब समझिए कि साइबर कैफ़े आया, ठीक है, या फिर जब समझिए कि पीसीओ आया, तो क्या हमने बात करना बंद कर दिया? नहीं ना। जब हमारे पास समझो कि ये 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, क्या हमने सेल फ़ोन का इस्तेमाल करना, ठीक है, हमारे यहाँ लैंडलाइन नहीं रहा, बट स्मार्टफोन तो आ गया कम्युनिकेशन के रूप में। एक समय मैसेंजर हुआ करता था। तो आप समझो, कोर बात समझो, जो हम ये एआई की हाइप बनाते हैं, एआई क्या होता है? एआई एक सिंपल सा, समझो कि इसको ऐसे आप समझो कि मैं आपसे अभी जो बात कर पा रहा हूँ एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एआई क्या करता है? मैथ के एल्गोरिथम को यूज़ करके जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं उसको एक मॉडल बना देता है। एआई बस यही होता है। अब आपका सवाल है कि एआई क्या यहाँ पे रिप्लेस कर सकता है? चलो, मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे कोई भी टॉपिक दो, कोई भी डॉक्यूमेंट दो, या किसी क्लास का किसी स्टैंडर्ड का, मैं एआई के मदद से आपके डॉक्यूमेंट को कुछ भी बना सकता हूँ जिससे कि आपकी पढ़ाई आसान हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने क्लास 12 के बाद साइंस को चूज़ किया?
Yes, sir. क्या सोच करके कि यहाँ पे मैं पीसीएम लूँगा या पीसीबी या फिर आईटीसीएस या इंटरडिसिप्लिनरी, यही सारे आपके ऑप्शन थे ना उस समय। Yes, आपने sir. जो है इस फील्ड में रह करके अगर आपने साइंस चूज़ किया तो कितना पैसा मिलता है, ठीक है। ये आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा है। आप मुझे बताओ कि इसमें से आपने चूज़ किया फार्मेसी को, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ये जो सैलरी का रेंज है ये तो एक एवरेज यहीं तक जा रहा है ना। अब कल Yes, को sir. कोई नया स्टूडेंट आपके कॉलेज में आता है, सेम उस पर्सन की कैरियर काउंसलिंग करनी होगी, तो मैं एआई की मदद से लोगों से बात करके सेम डेटा को मैंने इस तरीके से बनाया। आप मुझे बताओ कि क्या एआई ने किसी के कैरियर में जो इधर उधर बिगड़ रहा था उसको अगर मैं स्ट्रक्चर्ड रूप दे देता हूँ तो उसकी लाइफ में तो स्टेबिलिटी आ जाएगी ना। ये एक एग्जांपल है आपके सामने। एआई आपके काम Yes, को sir. आसान करेगा, आप इसका कैसा इस्तेमाल करना चाहते हो। हाँ, बिल्कुल वो वाली जॉब चली जाएंगी। जैसे मैं कहूँ कि कल को कोई कॉल करके ये बोले, अच्छा आप अपने कैरियर में चलो काउंसलिंग चाहते हो, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अपने घर में भी करते होंगे, तो हर कोई एक दूसरे से वैलिडेट करता है ना। तो एआई क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट कर लेता है। जैसे मैं बात करूं कि आपके बहुत से लोग, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि जो कि साइंस के स्टूडेंट हो सकता है कि आर्ट्स और या फिर जो है समझो कि ये जितने भी हमारे जो है ह्यूमैनिटीज़ के हैं उन लोगों को ये मौका नहीं मिल पाया होगा बिकॉज ऑफ फिनेंशियल कंडीशन या व्हाट्सोएवर। बट इफ़ दे आर इन दिस आर्ट एंड ह्यूमैनिटी, क्या वो ट्रेंडिंग या ट्रेडिशनल या इमर्जिंग फील्ड को चूज़ कर रहे हैं। अब एआई के माध्यम से मैंने इस डॉक्यूमेंट को बनाया है, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस फील्ड में बहुत पैसा कमा सकता हूँ। तो चलो ये फील्ड क्या है Yes, sir. आप देखो। अगर मैं कहूँ कि इसी कैरियर काउंसलिंग के लिए मैं आपसे पर मिनट या फिर पर आवर कुछ चार्ज करूँ, या फिर एआई ने इसको बना करके दे दिया, आप मुझे बताओ ये कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं नो योर नेम प्लीज़। हेलो। He's Durgesh, sir. He's Durgesh. ओके ओके, सो दुर्गेश जी एक और आपसे सवाल है। आपके घर में कोई छोटा भाई है या Yes, sir. ठीक है, तो वो अगर जो है समझिए कि किस किस क्लास में है। No, he's already in fourth year, sir, of graduation. ठीक है, मान लीजिए आपके घर में कोई क्लास 6 का स्टूडेंट है, 7th का स्टूडेंट है या 8th का स्टूडेंट है, 9th का। आप लोगों ने साइंस में चूज़ किया, उसमें बायो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि मैथ से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं रहा होगा। अब क्लास 6 की मैथ के जो टॉपिक थे वो क्या थे, एआई यही काम करता है। जैसे होल नंबर आप समझते हो ना, समझो बीमारी क्या है, फीवर है, उसका एक कोड हो गया। वो एक जो पूरा एक जो कंप्लीट नंबर है, ठीक है, वो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हुए कि नहीं हुए, ये बताइए आप। हुए Yes, ना। sir. अब वहाँ पे मैंने सिमेट्री देख लिया। अब सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको मेडिकल कोडिंग में बताया कि यहाँ पर जब हम मेडिकल कोडिंग की जर्नी को शुरू करते हैं तो ये सारे कोड के रूप में होते हैं। ये देखो इस तरीके से कोड के रूप में होते हैं। तो ये एक फिक्स वैल्यू हुई कि नहीं हुई, फिक्स वैल्यू। Yes. अब ये जो फिक्स वैल्यू है या फिर आपके जितने भी सर्जिकल चीज़ें हैं, ये जो फिक्स वैल्यू है, आप क्या करते हो मैथ के माध्यम से, जैसे कि कोई अगर सांस से रिलेटेड, रिस्पिरेटरी रिलेटेड से कंडीशन है, वो इसी रेंज के बीच में जाएगा। अब आपने यहाँ पे मैथ का इस्तेमाल करके अपने घर के बगल में जो क्लिनिक है, इंडिया में जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो उनके मेडिकल रिकॉर्ड को आसान कर सकते हो, केवल अपने समझो कि क्लास 8 की मैथ का इस्तेमाल करके। एआई आपके जॉब को ख़त्म बिल्कुल कर देगी अगर आप रिपीटेड टास्क कर रहे हो, अगर आप समझो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, या फिर केवल आप सुनना चाहते हो। एआई का स्कोप जो है ना, Yes. एआई समझो कि वहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, वहाँ पे चलो मुझे एक चीज़ और सबसे सवाल पूछना है। अगर मैं कहूँ कि आप लोग के दिमाग में वो पहला ऐसा सर्च इंजन कौन है, अगर आप कैरियर को रिसर्च करने जाते हो तो कहाँ पे जाते हो और किस पे जाते हो, बताइए। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू।
पहला जो दिमाग में थॉट प्रोसेस आता है या फिर कैरियर को चूज करना है, तो क्या दिमाग में I request you to please pardon your question, sir. या माय क्वेश्चन इज दैट, अगर आप अपने कैरियर के रिसर्च में हो कि मुझे क्या कैरियर चूज करना चाहिए, तो आपका जो सर्च इंजन होता है वो इनमें से क्या होता है? गूगल होता है, जीपीटी, एआई, यूट्यूब की वीडियोस, या कैरियर काउंसलिंग? इनमें से क्या पहला होता है? या You फिर have been muted, sir. Kindly unmute your mic, please. वन सेकेंड, वन सेकेंड, ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके No ओके, problem, sir. या सो माय क्वेश्चन इज दैट, आप अगर अपने कैरियर के चूज़ करने के पड़ाव में हैं, या दैट मीन्स यू वांट टू यू नो यू आर चूजिंग फॉर योर कैरियर रिसर्च, सो अमंग दीज थिंग्स आप किस पाथ को सबसे पहले, या फिर आपके दिमाग में क्या आता है कि मैं किस रास्ते से होकर के जाऊं कि मेरे कैरियर का चुनाव सही हो? सो एक दिमाग में इनमें से सबसे पहले किस पे लेके जाता, आप बताइए। Do anyone have answer? Students? गाइस प्लीज इंटरेक्ट विद मी। ChatGPT. चैट जीपीटी, परफेक्ट, Sir, ग्रेट। एनीवन? don't expect your teachers to answer. They are already been in their career. Yes guys, see, this session is for you. See, it's not like that today and tomorrow I am available for you. जब भी आपको ऐसा लगे, I am your big brother, okay? सो थिंक फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्टिव। मैंने अपने 13 साल के कैरियर में बहुत अप डाउन्स को देखा है। आपके जैसे लोगों के कैरियर को बनते बिगड़ते, या फिर सही समय पे अगर हमने सही चुनाव नहीं किया तो आने वाली ज़िंदगी कहीं न कहीं अफेक्ट हो सकती है। सो दिस सेशन इज़ फॉर यू एंड स्पेशली फॉर द गर्ल्स, बिकॉज इन माई करंट ऑर्गेनाइजेशन एज आई एम इंटरव्यू भी मैं लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, मोस्ट ऑफ द गर्ल अनटिल अनलेस दे विल नॉट, वो अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगी, अनटिल अनलेस दे विल नॉट अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगी। और कल को शादी ब्याह तो सबका होना है, सबका होगा, ठीक है? तो आपके लिए कौन सी ऐसी कैरियर है जहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो सके, आपको घर से काम करने का मौका मिले, आप एग्री स्टार्टअप कर सकते हो, आप अपने आइडियाज़ देखो सी, आप अगर घर पे हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम पे हो, तो आपके पास बहुत सा समय मिलेगा। एक तो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी, पेरेंट पे कोई समझो कि बर्डन नहीं, सोसाइटी में किसी को जवाब नहीं देना है, और कहीं न कहीं आने वाले समय में और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आप समझो कि मेडिकल कोडिंग आपके मैथ वाले इस लॉजिकल हिस्से, ठीक, आप छोड़ दो, मत करो। मैं कह रहा हूँ कि आप क्लास लो, 6 महीने तक छोड़ दो, मत जाओ इसमें। एक क्लास लेनी, 2 क्लास लेनी, जितनी भी लेनी है छोड़ दो, बट एक बार इसको टच करके जाओ, क्योंकि ये जो मैथ की दुनिया है ना, यही रूल करेगी। आप सबके पास ये बुक होगी, और यहाँ पे समझो कि चलो ठीक है, अगर चलो ठीक है, मैं अपने इसी क्वेश्चन पे आता हूँ। आप में से किसी ने जवाब दिया चैट जीपीटी, मैं एक और इनमें से अलग आंसर सुनना चाहता हूँ, या फिर मोस्ट, चलिए ठीक है, बस आप लोग अपना हैंड रेज करिएगा। हाउ मेनी पीपल विद गूगल सर्च, रेज योर हैंड, जस्ट आई वांट टू सी इन द कमेंट बॉक्स। Okay, great. How many people will go to YouTube videos? सी, एक तरीके का आप सबके दिमाग में ये पहले से डाल दिया गया है, इन टेक्नोलॉजी ने आपके बिहेवियर में शिफ्ट कर दिया है। एनीथिंग इफ़ यू सर्च ऑन गूगल देन यू विल गेट अ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अगर ये बात सही थी तो क्यों जीपीटी आया, क्यों परप्लेक्सिटी आया? आप इस हिसाब से सोचो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की भरमार है, बट मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरे लायक है। मैं क्यों 100 पेज को स्क्रॉल करूँ? यूट्यूब पे आपको हर कोई पर्सन मिल जाएगा, बट यहाँ पे वेरीफाइड एंड ऑथेंटिक एंड वेल स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। सो ये जो पूरी दुनिया है, हेलुसिनेशन क्रिएट करती है।
या फिर कैरियर काउंसलिंग आपसे किसी से करने जा रहे हो तो पता नहीं, आप अपने लिए तो कैरियर चूज़ कर लोगे, बट क्या पता आपके बगल वाला जिसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि उसको भी इसी कैरियर की ज़रूरत थी, और उसने अगर सही समय पे, मान लेते हैं उसके पास इतना ऑप्शन नहीं था कि ये पर्सन जो है अपने लिए सही इंस्टीट्यूट चूज़ कर पाए, या फिर हो सकता उसके घर में सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हो, उसने कॉमर्स किया हुआ है, अब उसे सरकारी जॉब में जाना है। ये वाली इंफॉर्मेशन आपको एआई नहीं देगी। ये वाली स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन पर्सनलाइज एंड वैलिडेटेड एंड वेरीफाइड आपको नहीं देगी। इसके लिए आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सो विद दिस मेडिकल कोडिंग कोर्सेज you will learn these thing also. So it's not about I'm providing you as a medical coder trainer, ये मेरा कोर्स है, आप खरीदो, मैं आपको बेचूं, या फिर हम कोई यहाँ पे एक सेल पीस तैयार करने हैं। नो, इस पूरे संसार में विद्यालय एक ऐसी चीज़ है जो किसी देश की नींव रखता है, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने कैरियर से, अपने लाइफ से जो सीखा है उसको नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र करें, ताकि आने वाले समय में आप वो गलती न कर सको। और आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, एक्चुअली देखा जाए तो मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक आपको बहुत सी सिंपल सी चीज़ बताऊँ, मेरे घर में बच्चे हैं, दीदी के हैं, भाई भतीजे हैं, बहुत से लोग हैं, रिलेटिव हैं, तो सब लोगों का, पेरेंट का मेरे से सवाल रहता है कि प्रदीप, मैं अपने बच्चे को क्या लाइफ में चूज़ कराऊँ कैरियर के रूप में। तो जब कैरियर का चुनाव की बात आती है तो यहाँ पे पेरेंट पैसे देने को तैयार हैं, बच्चा स्कूल में जाने को तैयार है। कल उसके सामने जब क्लास 6 का एक टॉपिक आएगा कि ग्राम पंचायत क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, फॉर्म ऑफ मनी क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होता है, तो मेरे जैसे शिक्षक आते हैं, केवल पढ़ा करके एनसीईआरटी के करिकुलम को आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे उस बच्चे के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर आता है। वो पेरेंट जो अपने बच्चों से एक सपना लगा के बैठते हैं कि कल को उसको पता है कि पार्लियामेंट में या फिर सरकारी नौकरी मिलेगी, तभी हमें समाज में वैलिडेशन मिलेगा। अपने आप को इस जगह पे रख के देखो कि आपने जो पढ़ाई की है वो आपके लॉन्ग टर्म कितना काम आ रही है। आपके आसपास बहुत से स्टूडेंट होंगे, बहुत से आपके दोस्त यार होंगे। आप अपने लाइफ में अगर ये छोटा सा चेंज करते हो, आप पढ़ाओ ना, किसी को भी पढ़ाओ, पड़ोसी को पढ़ाओ, दोस्त को पढ़ाओ, अपने आप को डॉक्यूमेंट, लेकिन पढ़ो। इससे होगा क्या, आप जो यहाँ पे आपका जो करिकुलम था, आपकी जो यहाँ पे समझो कि ये जो आपकी जो ये जो नॉलेज है, ये इंडस्ट्री के काम आ जाएगी। ये समझो कि ग्लोबल लेवल पे काम आ जाएगी। आपकी इन चीज़ों से, मेडिकल कोडिंग से आप पता नहीं कितने लोगों की लाइफ को बचा सकते हो। तो दिस इज नॉट अबाउट मेडिकल कोडिंग सेशन, इट्स ऑल अबाउट योर होलिस्टिक कैरियर पाथ। अगर हम यहाँ पे इस कॉलेज के जो डीन सर हैं या रिस्पेक्टेड ऑल द मेंबर्स, हमारा मिशन ही यही है, हमारा विज़न ही यही है कि हम आपकी लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करें। वैल्यू क्रिएट तब होगी जब आपको एक मेंटर मिलेगा जो कि आपकी किसी बात को इनकार नहीं करेगा, लेकिन ज़रूर बताएगा कि इनमें अंतर क्या होता है। क्योंकि अगर आपको कोई डाउट है, अगर मान लो इसके अलावा भी आप कोई अपने कैरियर के चुनाव के पड़ाव में कुछ और भी चूज़ कर रहे हो, माइट भी आपको डाउट होगा, समटाइम आप कमिटेड होगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगे, तो होगा क्या, हो सकता है कि अगर यहाँ पे आपने गलत डिसीजन ले लिया। क्योंकि लास्ट में आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको एक ऐसी इनकम मिले कि जिसमें आप अपने खर्चे को चला सकें, अपनी ज़िंदगी को जी सकें, और आने वाले, देखो ये बात अगर जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैम ने, सर ने पहले बताया कि 50-60 लोग, 100 लोग, हम लोग अभी करंटली इन चीज़ों को सुन रहे हैं। आप इन 100 लोगों में से 50 लोग अगर अपने कैरियर को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेकर के जाते हो, तो पता नहीं आप कितने लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बनाओगे।
और आप अगर सक्सीड होगे तो कोई यहाँ पे समझो कि कॉलेज को आपने फीस दिया, आपने हमसे कनेक्ट किया, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं। सी, ये ग्लोबल मार्केट है, आपको पता है ना। टोटल करंट अभी जो पूरे हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जिसमें इंडिया की जो एजिंग पॉपुलेशन है वो 75% 2030 तक हो जाएगी। एजिंग पॉपुलेशन मतलब 15 से लेकर 30 साल तक। सबको चाहिए क्या लाइफ में? सिक्योरिटी। पेरेंट के ऊपर कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? जॉब की जो ग्रोथ रेट है वो तो यही है। और एक बार आपने लाइफ साइंस को चूज़ कर लिया, मैं कह रहा हूँ बदल लो ना अपनी फील्ड, आप चले जाओ। आप में से हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको समझो कि ये बहुत अच्छा आता होगा वैकेशनल पाथ, वो समझो कि क्या बन सकता है अपने स्किल के बेसिस पे, या फिर जो फ्यूचर में जो है वो टेक्नोलॉजी आईटी की तरफ चले जाए, ई कॉमर्स की तरफ चले जाए, ऑनलाइन लर्निंग में चला जाए, या फिर जिसको बहुत अच्छा राइटिंग का आता है जर्नलिज्म में चला जाए, बहुत अच्छी वीडियो बनाने आता है। एडटेक की खुद की अपनी कितनी बड़ी मार्केट है। याद रखना, इस एआई के दौर में पहले भी कहानियाँ लिखी गई, पहले भी साहित्य बने, पहले भी सिनेमा चलता था, पहले भी थिएटर होते थे, आज भी समझो कि वेब ओटीटी है, केवल माध्यम बदला है। और जिस देश में ऐसे सोचने वाले होते हैं वो लोग कहीं न कहीं देश पे राज करते हैं। So this is all about that. I will provide you all the inclusive development. Thank you. Thank you so much, sir, for such an enlightening and futuristic session. Very well said and very satisfactorily answered. I'm sure our participants have gained great amount of knowledge from your expertise. Sir, now I will take your 2 minutes only. I request all of the participants to switch on their camera so that I can take a screenshot of the meeting. Sure. All of the participants, please switch on your cameras. I request all the participants, switch on your cameras, please. Hurry up. Students, whoever have joined the meeting, please switch on your cameras. Okay, so thanks to everyone for that photo shoot. Yeah, here are the students. Sir, madam, actually, I would like to show the students who are sitting in the room. Sir, please, Pradeep sir, please. Sure. Definitely. Pradeep sir, actually, you are able to see only 30 to 40 students, but actually, so many students are listening you. Okay, great. So guys, just cheer up. क्या आप शोर मचा सकते हो? अरे अब तो मचा दो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आप चलो, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हो कि मैं आपसे पर्सनली आपसे आ करके मिलूं? Everyone of us wants, sir. Guys, I want this answer from your side. If you are interested, definitely I will come. Sir, We would be waiting. yeah, sure, sir. Actually, more than 100 students are connected. श्योर डेफिनेटली। आप लोगों ने अगर मुझे मौका दिया है तो मैं सर, डीके सर एंड मैम, दिस माय प्रॉमिस, आपकी लाइफ Yes, sir, we में will love to meet you one या on one. मैं ज़रूर वैल्यू क्रिएट कर दूंगा, बट आपको बस मुझे 3 महीने का समय देना पड़ेगा। ओनली 3 मंथ मिनिमम। Sure, sir. Sure, sir. Should I end up this session, sir? and explain to मैम 1 मिनट हो लूंगा मैं। जी, sir, please. हेलो, प्रदीप सर, जी, sir, please. from the bottom of the heart, we really thank you, sir, for this enlightening learning to our. I hope they might have learned a lot of things and implement in their career also. And again, thank you so much for this short period you have accepted our request and delivered so good lecture. Thank you so much, sir. Thanks a lot. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। And future we will be in contact, sir. श्योर। थैंक यू। Okay, students, cheer up. Now moving to the next session. Without any further delay,
It is my privilege to introduce our esteemed speaker for today, Ms. Udita Chaudhary. She is highly accomplished professional in the field of medical coding, currently working as a senior coding analyst. Ms. Udita holds a Bachelor of Education and Masters in Biotechnology, and she is also a certified professional coder with more than 8 years of rich experience in leading multinational companies. She has developed deep expertise in medical coding and healthcare analytics. We are truly honored to have her with us today to share her valuable insights and experiences. I welcome you, Ms. Udita Chaudhary. The stage is Yeah, thank you, Varsha. Thank you for such honor. Hello, everyone. Myself, Udita Chaudhary, and I'm a certified medical coder with 8 years of experience. So I have a very deep knowledge in coding and medical coding field. So today I will gonna tell you more about this. What is this actually? What is medical coding thing? Okay. Uh, Actually, what happened in US? Everything is in short. We can say सुई से लेके जहाज तक everything is just in short. We are getting paid by the US government. So वहाँ पे हम जब भी किसी डॉक्टर को या प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर को हम लोग मीट करने जाते हैं तो वहाँ पे जाके हमें कुछ भी पे आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जो भी प्रोवाइडर का पे आउट सिस्टम होगा विद बाय बर्थ यू आर गेटिंग इंश्योर्ड. तो हमें वहाँ पे सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी से पे आउट होगा. पर उसके लिए जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं वो मेडिकल कोडिंग कंपनीज परफॉर्म करती है जो कि रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के प्रोसीजर के दौरान होती. वहाँ प्रोवाइडर्स का ऑल फाइनेंशियल बिलिंग कोडिंग रिकॉर्ड्स एवरीथिंग पेशेंट की डेमोग्राफिक पेशेंट की हिस्ट्री पेशेंट का जो भी आगे उसको डायग्नोसिस होने हैं जो भी उसके प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने हैं वो सब कुछ इन शॉर्ट होता है और एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड इन अ एआई फॉर्म ऑल्सो वी कैन से दैट. अभी किसी ने लास्ट सेशन में क्वेश्चन भी रेज किया था कि एआई का क्या इफेक्ट है. एआई इज गोना एनहांसिंग आवर करियर. इट इज नॉट गोना रूइन आवर करियर. सो आरसीएम के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग देयर मस्ट बी अ साइकिल. कोई भी प्रोसीजर अगर आपने फॉलो करना है कोई भी मैनेजमेंट आपको चाहिए तो कंपनी को एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जिसे हम रेवेन्यू साइकिल बोलते हैं और उस रेवेन्यू साइकिल को मैनेज करने के प्रोसीजर को हम आरसीएम बोलते हैं, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट प्रोसीजर. तो वहां जब भी हम किसी भी डॉक्टर या प्रैक्टिशनर को लीड करने जाते हैं दिखाने के लिए जाते हैं तो हमें क्या होता है सबसे पहले हमें अपॉइंटमेंट कंडक्ट करनी पड़ती है. अपॉइंटमेंट के लिए हम फिजिकली भी वहां प्रेजेंट हो सकते हैं और हम इलेक्ट्रॉनिकली मेल के थ्रू भी हम अपॉइंटमेंट कंडक्ट करवा सकते हैं. एंड अनदर थिंग हम लोग कॉल पे भी अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करा सकते हैं. तो फर्स्ट प्रोसीजर हमारा वहां पे जाके यही होता है कि फर्स्टली हमें अपने आप को वहां पे अपॉइंट करवाना होता है. कोई भी पेशेंट होता है. आफ्टर दैट उस पेशेंट के अपॉइंटमेंट के बाद पेशेंट का प्री ऑथराइजेशन होते हैं, चेकिंग्स होती है, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स होते हैं. जब आप जाओगे वहां पे तो फर्स्टली आपका डेमोग्राफिक चेक किया जाएगा, आपकी सारी डिटेल्स देखी जाएंगी, आपके इंश्योरेंस के अंदर ये चेक किया जाएगा कि आपके कोई लास्ट पे आउट्स तो नहीं है, डिडक्शंस तो नहीं है, फिर आप क्या क्या प्रोसीजर कन्वे करने के लिए एलिजिबल है, ये सब कुछ चेक किया जाता है अकॉर्डिंग टू आरसीएम प्रोसीजर. उसमें आपको सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके इंश्योरेंस अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है और आप कौन कौन सी प्रोसीजर फैसिलिटीज इजीली ग्रैब कर सकते हैं और कितना आप पे आउट बाय इंश्योरेंस कर सकते हैं और हम सेकेंडरी पेयर के अकॉर्डिंग भी पे आउट कर सकते हैं. थर्ड प्रोसीजर इसमें क्या होगा कि फर्स्ट हम गए, अपॉइंटमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन में वेरिफिकेशन हुआ, देन वहां पे हमें प्री ऑथराइजेशन प्रोवाइड होंगी. इन प्री ऑथराइजेशन प्रोसीजर आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि डॉक्टर ने जो जो प्रोसीजर आपको आगे फॉलो अप कराने हैं वो आप एलिजिबल हो लेने के लिए या नहीं हो, कितना आपको इंश्योरेंस पे आउट कर सकता है और कितना आपको अपने पॉकेट से पे आउट करना पड़ेगा. प्री ऑथराइजेशन की वजह से पेयर का भी टाइम कंज्यूम होता है और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं प्रोवाइडर्स हैं उनका भी टाइम कंज्यूम होता है. टाइम कंजप्शन भी होता है और आगे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाता है. आफ्टर दैट आप लोगों का डायरेक्टली पेशेंट का डायरेक्टली क्या होगा डॉक्टर से मीट होगा और वहां पे ट्रांसक्रिप्टर एक प्रेजेंट होगा. अगर आप डॉक्टर की लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो आप डॉक्टर की लैंग्वेज में उससे डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं. अदरवाइज उस रूम में आपको ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड होते हैं. ट्रांसलेटर्स अलग से चार्जेबल होते हैं.
ट्रांसलेटर्स को भी उनकी फीस हमारे ही प्रोसीजर्स के दौरान, मेडिकल कोडिंग के दौरान ही प्रोवाइड होती है। ये सब हमारे सीपीटी और आईसीडी प्रोसीजर्स के बीच में इंक्लूडेड होते हैं। देन ट्रांसलेटर्स जो भी डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बात होगी उस सबको एक ट्रांसक्रिप्टिक स्क्रिप्ट के अंदर रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड होने के बाद वो सारा डाटा हमें बिलिंग कंपनी को प्रोवाइड कराना। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो भी डाटा होगा वो बिलिंग कंपनीज में आएगा। जो हम सर्टिफाइड कोडर्स हैं या बिलिंग टीम के लोग हैं, वो लोग अब उन पे काम करेंगे। सर्टिफाइड कोडर्स जो भी हमारे प्रोसीजर्स या डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में जो भी ट्रांसक्रिप्ट हुआ है उसको एक कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जो हम एपीसीसी की डिग्रीज के अकॉर्डिंग सीखते हैं। उनकी बुक में नॉलेज में सिखाया जाता है, जो कि हमारी कोचिंग आपको प्रोवाइड कराएगी कि आपने कौन सा सीपीटी कोड एक्चुअली में चूज करना है। सीपीटी मीन्स करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी और आईसीडी मीन्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो सीपीटी के बेसिस पे हम कोडिंग लैंग्वेज में वो चीज को कन्वर्ट करते हैं जो सर्विस हमने डॉक्टर से ली है, जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स है। तो सीपीटी हमें ये सब कुछ गाइड करती है कि किस तरीके से हम क्या क्या कोड कर सकते हैं, और उसी सीपीटी और आईसीडी की कोडिंग के बेसिस पे हमारे प्रोवाइडर को जो भी बिलिंग अमाउंट है वो पे आउट होगी। तो जो हमारा टास्क है सीपीटी एंड बिलिंग का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है डॉक्टर्स को उनकी पेमेंट पे आउट करवाने के लिए। आफ्टर दैट जब हमने कोडिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, सीपीटी और आईसीडी असाइन कर दिए गए, तो जो हमारा क्लेम होगा वो हमारा क्लेम आगे सबमिट किया जाएगा क्लियरिंग हाउस के पास। क्लियरिंग हाउस उसमें चेक करेगा कि कहीं कोई फ्रॉड या फिर कोई मिस प्रोसीजर जो हमने नहीं परफॉर्म किया। एक एक स्टेप वेरीफाइड होता है हमारा रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के दौरान, ताकि जितना हो सके डिडक्शंस कम हो और प्रोवाइडर्स को पूरी तरीके से पे आउट किया जाए। प्रोवाइडर्स जितनी अच्छी तरीके से हमारे स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, उसी तरीके से जो भी गवर्नमेंट है, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है, वो हमारे प्रोवाइडर को पे आउट करेगी। ईच एंड एवरी स्टेप इज क्रूशियल इन दिस। Am I understandable to everyone till now? Yes, ma'am. Okay. Yeah, please. Yeah, so I'll proceed then. After that, clearing house इन सब डाटा क्लेम्स को अच्छे से चेक करेगा। अगर कुछ डिनायल्स हैं, अगर उसके अंदर कुछ फ्रॉड प्रैक्टिसेस हैं या फिर कुछ भी मिसलीडिंग है जिस वजह से पेमेंट रुक रही है, तो वो हमें क्लेम्स वहां से डिनायल होके या रिजेक्शंस होके हमारे पास आएंगे। Then we have a separate department for this, rejection department and a denial department। आप इस चीज से ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास मेडिकल कोडिंग फील्ड में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जॉब वैकेंसीज आई थिंक बहुत है, आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस पे काम कर सकते हैं। रिजेक्शन एंड डिनायल डिपार्टमेंट्स में चेक किया जाता है कि हमने क्या, कहाँ पे, कौन से स्टेप में क्या चीज मिसलीड की है, कहाँ पे हमसे कोई भूल चूक हुई है। अगर हमने सीपीटी प्रोसीजर्स गलत लगाए हैं, सर्विसेज गलत प्रोवाइड कराई हैं, या फिर आईसीडीज कुछ गलत मैचअप हो गए हैं, तो वो सब हमें वहाँ पे हाईलाइट होगा और वो हमें ठीक करना होगा, करेक्शन होगी उस क्लेम्स में। आफ्टर दिस करेक्शंस हम उसको वापस से क्लेम सेंटर में भेजेंगे, वो क्लेम वापस रीसबमिट होगा। वहाँ रीसबमिशन के बाद अगर वो प्रोसीजर्स बिल्कुल अच्छे से वेरीफाइड है, कोई फ्रॉड प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्लेम हमारा सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद बिलिंग कंपनीज के हेल्प से हमें वो बिलिंग प्रोवाइड होगी। पेपर फॉर्म में भी होती है, चेक फॉर्म में भी होती है और पे आउट भी होता है। इवन रिजेक्शन डिनायल्स उसके बाद जब ये बिलिंग कंपनीज में ये जाता है तो वहाँ पे एआर फॉलोअप्स किए जाते हैं। वहाँ से जो भी हमारा पेशेंट होता है उसके पास कॉल जाता है कि आप लोगों को इतना इतना आपका इंश्योरेंस पे आउट कर सकता है। बाकी जो रैंसम अमाउंट हमारी जो भी हमारी अमाउंट रह जाती है वो हम या तो सेकेंडरी इंश्योरेंस से पे आउट करवा सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं है तो वो पेशेंट को पे आउट करना पड़ता है। इन सब प्रोसीजर से क्या बेनिफिट होता है एक्चुअली में, ये वहाँ पे इंश्योरेंस से क्या बेनिफिट होता है? इंश्योरेंस से ये बेनिफिट होता है कि ईच एंड एवरी पर्सन जो है वहाँ पे वो टाइम टू टाइम हेल्थ केयर में ऑलरेडी अब प्रेजेंट हो जाता है। क्योंकि हमारे जैसे इंडिया में इंश्योरेंस वगैरह में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटल जाने से पहले भी काफी बार सोचते हैं कि हम जाएं या ना जाएं, जेब से अमाउंट लगेगा ये।
बट नहीं, वहाँ यूएस में एवरीथिंग इज इन शॉर्ट, तो इतना किसी को सोचना नहीं पड़ता। वहाँ छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए, इवन कफ एंड स्नीज और कोल्ड, इन सब के लिए भी जो भी पेशेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, और प्रोवाइडर भी पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। और इवन वहाँ पे प्रोवाइडर्स को जैसे कि ये पता है कि वो पेशेंट इंश्योर्ड है, और उसकी पेमेंट, प्रोवाइडर की जो पेमेंट है वो इंश्योरेंस की हेल्प से होगी, तो वहाँ पे प्रोवाइडर्स भी हैं, वो भी वही सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो मैंडेटरी होती। एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराने की वजह से मे भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी पे आउट ना करे, कुछ रिजेक्शंस लगा दे, कुछ डिनायल्स दे दे, तो पेशेंट पे करता है या नहीं करता, दैट विल डिपेंड। तो वहाँ पे कोई भी सर्विसेज होती है तो ये सब कुछ हमारे को ऑलरेडी प्रोवाइडर को पता होती है, तो इसीलिए वहाँ पे टाइम कंजप्शन भी है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज भी काफी अच्छी हो जाती है, और जो ये काम होता है वहां से हमें प्रोवाइड होता है। ये जॉब्स हमारी जो भी है हमें वहाँ यूएस के थ्रू या यहाँ पे इंडिया में आजकल कुछ हॉस्पिटल्स में ये प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी हैं, इंडिया में भी ये आ चुका है, अब आईसीडी, सीपीटी एंड ऑल, फोर्टिस, मेदांता, ऐसे हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज स्टार्ट हो चुकी है मेडिकल कोडिंग, तो प्रोजेक्ट्स इंडिया में भी है। अब हमारी कोचिंग सेंटर्स का ये पर्सपेक्टिव है कि हम जितने हो सकते हैं उतने लोगों को मेडिकल कोडिंग के बारे में गाइड करें, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि मेडिकल कोडिंग, ये आईसीडी, सीपीटी, ये सब कैसे होता है। बट आने वाले टाइम में प्रॉपरली जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो सब कुछ ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगा, बिकॉज कोई भी आज के टाइम में कैश कैरी नहीं करता, कोई भी करना नहीं चाहता, सब एक पैकेजेस चाहते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करा सकती हैं। तो जॉब्स की जो आगे आने वाली फील्ड है मेडिकल कोडिंग, उसमें वास्ट तरीके से करियर प्रोवाइड कराएगी हमें। एआई इसको एनहांस कर रही है, एआई इसको सर्कुलेट भी कर रही है, और एआई हमें न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू न्यू एप्स और न्यू न्यू सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रही है, जहाँ पे हम एनरोलमेंट कर सकते हैं। हमें गाइड और स्किल्ड पर्संस की भी रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट है। एवरीवन नीड जॉब एंड वी वांट वर्क आल्सो। तो जो हमारा कोचिंग है वो आप लोगों को टाइमली काफी स्किल्ड नॉलेज प्रोवाइड कराएगा विद द प्रोफेशनलिज्म। हम आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस भी प्रोवाइड कराएंगे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको, आपको लाइव चार्ट प्रैक्टिसेस भी मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग पे आपको डिटेलिंग भी मिलेगी। एज यू ऑल आर फ्रॉम फार्मा डिपार्टमेंट आई थिंक, सो फार्मा के बेनिफिट्स भी हमारे पास काफी हैं, बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि टर्मिनोलॉजी क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बहुत नॉलेज है। इस फील्ड में ऐसे भी लोग हैं जो आई थिंक मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, बट उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें टर्मिनोलॉजीज के बारे में नॉलेज नहीं है, डिजीज के बारे में नॉलेज नहीं है। बट जो मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो फार्मा से बिलोंग करते हैं, उनको तो ड्रग्स की नॉलेज भी है। आने वाले टाइम में ड्रग डिपार्टमेंट में भी बहुत काम है, वास्ट स्कोप है इसके अंदर आप लोगों को। तो हम आपको यहाँ पे प्रॉपर सीपीटी, आईसीडी, एनाटॉमिकल, मॉडिफायर्स, हिपिक्स, एवरीथिंग नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। प्लस हम लोग आपको, अगर आप लोगों को एग्जाम में एनरोलमेंट करना है तो हम लोग आपको एग्जाम एनरोलमेंट भी टाइमली करवाएंगे। जॉब प्लेसमेंट 100% है ऑल ओवर इंडिया। स्किल्ड डिपार्टमेंट मिलेगा आपको, प्रोफेशनल ट्रेनर्स मिलेंगे, सारे डाटा डॉक्यूमेंटेड, पीडीएफ एंड ऑल, ये सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मेडिकल कोडिंग में फार्मा लाइंस, मेडिकल लाइंस के लिए बहुत स्कोप है। सो इफ एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन कैन आस्क प्लीज, आई एम रेडी टू आंसर नाउ। Yes, anyone out there in the meeting have any question? Okay, till the time you think of the question, I would like to ask a question to the ma'am. Ma'am, what motivated you to pursue this field? Actually, after medical line, after selecting masters and masters, we always want to go to the PhD thing like that. Okay. बट जब हमने इस फील्ड में एंटर किया मेडिकल कोडिंग लाइन में, तो इसमें बहुत ही स्कोप लगा और काफी इंटरेस्टिंग जॉब है ये। इसमें आपको नई नई नॉलेज भी प्रोवाइड होती है, आपको पता लगता है, अपडेट रहते हैं आपको उसके लिए, काम के लिए, और आपको ग्लोबली क्या चल रहा है, क्या डिजीज आ रही है। तो आई जस्ट लव माई जॉब। ये हमें बहुत नॉलेज प्रोवाइड करता है। पीएचडी, अगर आप मास्टर्स के बाद पीएचडी परस्यू करेंगे, आपको 5 ईयर उसमें स्पेंड करना पड़ेगा। आफ्टर 5 ईयर भी आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इवन आई गोट अ कॉल टिल नाउ फ्रॉम माय पीएचडी स्कॉलर्स कि उदिता प्लीज प्रोवाइड अस एनी लिंक टू गेट अ जॉब इन अ मेडिकल कोडिंग लाइन।
बिकॉज आफ्टर पीएचडी भी वही है, पीएचडी करने के बाद भी बीएड करके लोग स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। और ये एक रेपुटेटिव जॉब है, ये आपको एक सोसाइटी में प्लस फैमिली में एवरीवेयर आपको एक रेपुटेशन भी प्रोवाइड कराती है कि आप मेडिकल लाइन से बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्टेड है। ओके, सो दैट्स माय मोटिवेशन या। Okay, ma'am. Next question I am having. As you are a certified professional coder, how important are certifications like CPC for building a career in medical coding? If you want to pursue in medical coding, you must have to be certified first, because there is no such jobs nowadays for non-certified one. That much. Just a few, like a domestic kind of a companies, like few small companies can hire you. There is two to three, I think. Those can hire non-certified coders. But if you want to grow in this field, you must require this thing. And one more thing, इस प्रोफेशन में क्या सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको कोई भी डिग्री या डिप्लोमा करना होता है तो आपको आई थिंक उसके लिए आपको 2 या 3 साल स्पेंड करने पड़ते हैं, राइट। बट मेडिकल कोडिंग में क्या है कि आपको ये 5 या 6 मंथ्स का जो भी है ये प्रोसीजर हमारे से लेना होगा, आपको हम कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे। जस्ट आफ्टर दिस कोचिंग यू कैन अप्लाई फॉर एग्जाम, इवन एट द टाइम ऑफ कोचिंग यू कैन अप्लाई। जब आप सर्टिफिकेशन के लिए आप जो भी रजिस्टर कराते हैं अपना एग्जाम के लिए, जो हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है नोएडा में, वहां पे जो भी हम रजिस्टर कराते हैं उसमें आपको एग्जाम की फीस भरने के बाद आपको 2 चांस प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। कैन यू प्लीज जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट, जस्ट अ मिनट, सॉरी। Yeah, ma'am. Why not? या तो जब भी आप ये कोचिंग देते हैं तो आफ्टर 6 मंथ यू आर कम्प्लीटली एलिजिबल। और इस एग्जाम की फीस भरने के बाद आपको 2 चांस प्रोवाइड होते हैं एग्जाम्स के। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपकी 70% की कोचिंग कंप्लीट हो गई तो आप एक बार एग्जाम दे सकते हैं। इसका क्राइटेरिया ये रहता है कि 70% आप लोगों को इसके अंदर एग्जाम के अंदर ग्रैप करने होते हैं इस एग्जाम के दौरान। फर्स्ट अटेम्प्ट इन केस एनी हाउ आप लोगों का क्लियर नहीं हो पाता तो उसी फीस में आपको सेकंड चांस भी अलाउ होता है। तो ये भी एक Do बेनिफिट anyone have? बेनिफिट या ये भी एक बेनिफिट है। बाकी डिग्रीज में आपको 2 साल 3 साल 4 साल प्रोवाइड कराने के बाद कोई डिग्री होल्ड होती है या फिर आपको आपकी प्रोफेशनल जॉब मिलती है। बट इसमें आप अगर जैसे आप अपना एग्जाम क्रैक करेंगे इवन आफ्टर 6 मंथ ऑल्सो, डायरेक्टली आफ्टर 6 मंथ ऑल्सो, सो यू आर एलिजिबल टू टेक अ जॉब। और इसमें जो सर्टिफिकेशन होगा वो एवरी ईयर रिन्यू होता है, जिसकी फीस आई थिंक 10 to 11,000 रुपीज होती है। एवरी ईयर ये सर्टिफिकेशन रिन्यू होता है। वो भी आप जिस भी कंपनी में रजिस्टर कराएंगे, जहाँ पे आप जॉब करेंगे, वो कंपनी आपको एवरी ईयर वो खुद ही वो आपको रिन्यू करके देती है। आपको उसके लिए भी कुछ पे आउट नहीं करना पड़ता। टिल द टिल द डे यू आर वर्किंग तो कंपनी आपके एवरी एक्सपेंसेस को होल्ड करेगी। और कंपनीज जॉब्स इतने सिक्योर हैं और ऐसे लाइक जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ, दे आर वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, प्रदीप सर हैं, एवरी अनदर अनदर पर्सन ऑल्सो। तो हमारी कंपनीज में और भी बेनिफिट्स काफी होते हैं, लाइक कैब फैसिलिटीज कंपनी की होती है, सैलरी तो आपको पे आउट हो ही रही है, Okay. प्लस आपको इंश्योर्ड भी किया जाता है। आपके मेडिकल हेल्थ के इंश्योरेंस आपको 5-5 लाख या 10-10 लाख का एवरी कंपनी का अपना पैकेजेस होता है। फीमेल एम्प्लॉयज को इतना बेनिफिट्स है कि फीमेल एम्प्लॉयज के टिल 2 बेबीज गवर्नमेंट फैसिलिटीज सारी आपको प्रोवाइड होती हैं। दो बच्चे इवन टिल 2 बर्थ आपके डिलीवरी पे आउट्स भी कंपनी की तरफ से होते हैं। बच्चों की फीस टिल 8 इयर्स आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी सारी प्रोवाइड होती है। 8 ईयर तक आपको डे केयर की जो फीस होती है बच्चों की वो भी कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं। तो बेनिफिट इस फील्ड में बहुत है। मेडिकल कोडिंग के फील्ड में अगर आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको वो सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड होते हैं। आपका पीएफ इंक्लूड होता है, आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपकी पेंशन स्कीम्स भी हैं। तो मेडिकल कोडिंग लाइन में अच्छी कंपनीज में असाइन होने के बाद आपको ये भी सारे बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं वो सब भी आपको प्रोवाइडेड होते हैं। ओवर टू यू। या See, for students, there is a huge amount, vast amount of scope in medical coding. Do anyone else is having any question regarding the same? Any student out there?
Okay, I'm giving you more time to think of it. Ma'am, another question from my side. Yeah. From your 8 years of MNC experience, what key professional skills apart from technical knowledge are most valued in the industry or in the company? Like knowledge about the medical things, science, everything. We are not only working. ये जो मेडिकल कोडिंग की जॉब है ये बहुत ही फन लविंग जॉब है. इन केस आप कंपनीज में जाते हो, आप न्यू न्यू इंटरेक्शन कर पा रहे हो मेडिकल कोडिंग फील्ड में. जैसे कि मैंने बताया कि नॉट ओनली सिर्फ मेडिकल फील्ड के लोग होते हैं, हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, हर बैकग्राउंड से आपको लोग मिलेंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, मैकेनिकल, टेक्निकल, एवरीवेयर. सब तरीके के लोग आपको वहां पे Sorry मेडिकल for कोडिंग लाइन में मिलेंगे. या sorry for the interruption, but there's a doubt just revolving inside my mind. So could you please allow me to express it? या श्योर, गो अहेड. All right. So, ma'am, I just came to know this piece of information that this course is belongs to diversified fields. So, don't you think that सॉरी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, कैन यू प्लीज रिपीट? medical sciences? सॉरी. Sure, ma'am. Durgesh, Durgesh, please pardon your question. Ma'am, I just want to say that I just came to know this piece of information that this course belongs to diversified fields. I mean, students belonging to diversified field can approach to medical. I'm just thinking. I'm, I'm just Not able to thinking, hear ma'am. you. Yeah. Like on one side, Hmm. this is showing a hope to medical students, like students studying Yeah. pharmacy or Yeah. Yeah. BMS or something like that. But on other hand, this is showing something very hack, like students belonging to diversified course can approach to medical coding. So this gonna create a competition among the students, like. Means this is turning this field a very hectic field, a very stressful field. I mean, it's having Yeah. much better Okay. Yeah. technical skills can easily overcome medical students. No, I'll tell you about this thing. Yeah, this is the thing कि कंपटीशन तो है. कंपटीशन कौन सी फील्ड में नहीं है आज के टाइम में, बट मैंने यही बात बोली बिकॉज यू आर फ्रॉम फार्मा, यू आर फ्रॉम मेडिकल कोडिंग बैकग्राउंड, तो आप लोगों को ज्यादा स्कोप है. आप लोगों को टर्मिनोलॉजी की नॉलेज ऑलरेडी है, ड्रग्स की नॉलेज ऑलरेडी है, आप लोगों को रिपोर्ट्स रीड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप खुद एक बात सोच के देखिए कि अगर आपके सामने मैं किसी भी टर्म का यूज करती हूँ लाइक डिजीनेस, वर्टिगो, मे बी यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट एक आर्ट्स कॉमर्स का जो स्टूडेंट है उसको ये नहीं पता कि ये टर्म्स क्या बिलोंग करती है, उनको नहीं पता कि एक्यूट किडनी इंजरीज क्या होती है, फ्रैक्चर्स एक्चुअली में कितने टाइप के होते हैं. बट फार्मा के स्टूडेंट्स को या मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी नॉलेज है, तो वो इजीली एक तो ये कोर्स करने में उनको हेल्पफुल होगा. उनको इतना डिटेल में एनाटॉमिकल या ये सब चीजें पढ़ाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट वांट अ ब्रश अप. You all already know about the medical terminologies, so you just want a brush up for the theoretical part, I think. जो आपको कोडिंग, आप लोगों को कहाँ फोकस करना पड़ेगा? बेसिकली इन एल्गोरिथम्स लाइक सीपीटीज एंड आईसीडीज एंड मॉडिफायर्स. आपको सिर्फ वो चीज लर्न करनी है. एक्चुअली सीपीटी और आईसीडी में होता क्या है, यू ऑल अवेयर अबाउट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सॉरी, डिक्शनरीज यू ऑल नो, प्लस जो टेलीफोन डायरेक्टरीज हमारी आती हैं, आप लोगों को इस सब के बारे में पता, जो पहले आती थी मतलब टेलीफोन डायरेक्टरी, उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग ए बी सी के कॉलम से जाते हैं और हम लोग सर्च करते हैं कि क्या नंबर है या किस फील्ड का क्या नंबर बिलोंग कर रहा है, राइट? तो आईसीडी एंड सीपीटीज में भी यही होता है कि हमारे पास एक बुकलेट्स होती हैं, आईसीडी की अलग, सीपीटी की अलग. आपके प्रॉपर चैप्टर्स बने हुए हैं, आपको प्रॉपर उसमें से कैसे लीड करना है, सिर्फ आपको ये सीखने की जरूरत है. अकॉर्डिंग टू मी, मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर्स हूँ बायोटेक्नोलॉजी से, तो हमें भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ा. हमारे साथ में भी काफी लोग थे जिन्होंने एग्जाम्स कंडक्ट किए थे, आर्ट्स से, कॉमर्स से, हर फील्ड से थे, इवन नॉन मेडिकल से भी थे. तो उन लोगों को भी, नॉन मेडिकल वालों को भी ये प्रॉब्लम होती थी कि किस तरीके से डिजीज को सर्च करना है, एक्चुअल में वो डिजीज है ही क्या. अब जस्ट लाइक मैंने आपके सामने वर्ड्स यूज किए, वर्टिगो, डिजीनेस, ये मैं मान सकती हूँ कि आज की मॉडर्न जनरेशन को इजीली पता है, बट स्टिल जैसे कि जो जनरेशन थोड़ा रूरल एरिया से बिलोंग करती है या नॉर्मल वाले अर्बन एरिया से बिलोंग करती है, वहां हम लोग ये वर्ड डेली यूज में यूज नहीं करते.
तो वहां नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो उन लोगों को पहले इसको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे कि ये है क्या, उसके बाद वो अपनी बुक पे आएंगे। बट हमें नीड नहीं है, और ड्रग्स भी है तो आपको तो बहुत इजीली पता है कि कौन सा ड्रग कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। एंटीबायोटिक है या फिर वो एंटी ट्यूसेटिव है, क्या नहीं है, तो आप लोगों को बहुत इजीली पता है। तो आप लोगों को इतना डीप में जाने की नीड नहीं होती, आपको सिर्फ ब्रशअप चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ ये सीखना है कि कोडिंग करनी कैसे है। So, ma'am, if it's so that the students having a better knowledge of medical sciences, why can't we constrict this course only to medical field? Why we are considering all other diversified courses as well, knowing बिकॉज that we could do much better? एक्चुअली ये थिंग क्या है, ये जो डिग्री है ये बेसिकली स्टार्ट हुई है यूएस, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से। वहां पे जो ये काम होता है मेडिकल कोडिंग का, वहां पे ये काम वहां के एम्प्लॉयज को, उनको वहां की कंपनी को, ये वहां के एम्प्लॉयज से कराना कॉस्टली पड़ता है। इसीलिए वो हमारी कंपनी से यहाँ पे इंडिया में कराते हैं। तो इंडिया में ऐसा कोई वो प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है कि भाई यहाँ पे प्रॉपर कॉलेज खुला हुआ है मेडिकल कोडिंग का। इंडिया में सिर्फ कोचिंग्स है, वहां प्रॉपर डिग्रीज वहां पे कंडक्ट है। इसीलिए जो हमारी एपीसी की डिग्री है वो सर्टिफाइड यूएस से होती है। ठीक है, तो वहां से वो लोग हायर करते हैं जो एम्प्लॉयज उन्हें सही, मतलब सही अमाउंट में बढ़ते हैं। कंपनीज हायर करते हैं बेसिकली, और एम्प्लॉयज हमारी कंपनीज हायर करती है। तो ये प्रोसीजर्स उनके लिए है। तो ये डिग्री या डिप्लोमा, अब आप एक बात बताओ कि फार्मा का भी कोई डिप्लोमा है? ठीक है, बी फार्मा इज फाइन, बट डी फार्मा जो है ये डिप्लोमेटिक थिंग है, राइट, डिप्लोमा है। तो उसके लिए कोई भी एलिजिबल है, कुछ क्राइटेरिया, नॉन मेड वाले भी एलिजिबल है, मेडिकल वाले भी एलिजिबल है, राइट। तो Yes, हम ma'am. इसमें कोई भी सिलेक्शन नहीं दे सकते कि सिर्फ इसी फील्ड के लोग जाके काम कर सकते हैं। आप मेडिकल कोडिंग में एंटर करो तो आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में हर एजुकेशन के बेसिस पे जॉब्स प्रोवाइड है। मेडिकल कोडिंग में आप कोडिंग कर सकते हो, बिलिंग में आप बिलिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो, एआर फॉलो अप में आप नाइट में कॉलिंग ले सकते हो, जहां पे आप क्लेम्स की कलेक्शंस करोगे, पेमेंट का चेकआउट करोगे, ये सब कुछ करोगे। ट्रांसक्रिप्शन डिपार्टमेंट अलग है, जहां पे कोई भी फील्ड का आर्ट्स कॉमर्स का पर्सन जो है असाइन हो जाएगा, जिसको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वहां पे बैठ के ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। तो कोई भी फील्ड ऐसी नहीं होती कि जहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट चाहिए। अब आईटी का डिपार्टमेंट भी तो हमारे मेडिकल कोडिंग की लाइंस में कंपनीज में होता है। तो आईटी का काम कोई मेडिकल पर्सन तो नहीं कर पाएगा ना। मेडिकल कोडिंग में हर तरीके का स्कोप है, बट उसके बाद आप उसको कितना प्रोफेशनली कर पाते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। इंटरव्यूज के बाद आपको जॉब प्रोवाइड कराई जाती है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाओगे। कोडिंग डजंट मीन कि आप बैठ जाओगे और आपको हर डिपार्टमेंट का कोडिंग करने को मिल जाएगा, नहीं। कोडिंग के अंदर फर्दर डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी है, ईडी है, ईएनएम पार्ट है हमारा, नर्सिंग डिपार्टमेंट है। आपको आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट चूज करना पड़ेगा, राइट। Do anyone having any other question, or should I wind up? Sir, do anyone having any question from our classroom? No, please. Okay, so I would extend my thank you. So thank you so much, ma'am, for your insightful and inspiring session. Your talk has given us a deeper understanding of opportunities and challenges in the field of medical coding, and it will surely guide and motivate our students in shaping their future careers. So, right now, I'm very much privileged to deliver the vote of thanks on behalf of School of Pharmacy and Research Center, Samskriti University. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to our distinguished speakers, Mr. Pradeep Kumar sir and Ms. Udita Chaudhary ma'am, for gracing this session with their presence and sharing their invaluable knowledge. Their insights into medical coding, professional journeys, and real world experiences have truly enriched us and given our students great inspiration for their future careers. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. I would also like to thank our respected director, sir, Dr. D.K. Sharma, sir, Sanskriti University, all the faculty members, colleagues, for their constant support and encouragement in making this event possible. A special thanks to all the students for their active participation and enthusiasm in the session.
Once again, we are sincerely grateful to our speakers for sparing their precious time and enlightening us with their expertise. Thank you all. At the end, I would like to request to you all, please switch on your cameras so that I can take your screenshots in the meeting. Will assure your kindly please switch on your cameras. Also Pradeep sir and Mumta ma'am. I request to all kindly switch on your cameras. Okay, thank you. It's done. Now you can leave the meeting.